सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भोपाल सौरभ जेटली आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज इस 29 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के ऊपर जो मनाया जा रहा है माननीय श्री मेजर ध्यानचंद जी की याद में, जो हॉकी के जादूगर भी कहलाए। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने उस देश में जन्म लिया जहां पर माननीय ध्यानचंद जी ने जन्म लिया और भारत का गौरव उस समय में बढ़ाया जब भारत आज़ाद भी नहीं था। उस दौरान उनको बहुत सारे प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन उन्होंने देशभक्ति का एक अप्रतिम उदाहरण देते हुए भारत के साथ रहने का जो एक निर्णय लिया, वो हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग है। मोटे तौर पे अगर हम बात करें गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, तो देयर आर सेवरल बेनिफिट्स, probably you might be knowing about all of them or may not be knowing that. So in nutshell, I just want to discuss some of the um, importance of games and sports. Basically, games and sports, for me, according to me, they are for the well-being of physical, mental and spiritual. Spirituality, I would like to connect spirituality with the games and sports, because I personally believe that there is a kind of cycle between spirituality and games. If you want to reach to inner peace, if you want to achieve inner peace, then you have to do good in games. And once you are doing good in games and sports, definitely you because the energy is being channelized, you have got a plenty of satisfaction inside you, then it will help you to reach to the inner peace. And we all know there are several physical benefits as well for playing games and sports, because when we play any games, definitely it gives endurance to our body, but it also make ourselves aware about the environment, how where we are living, with whom we are interacting, how to deal with the other peoples, how to adopt the new situations, how to learn quickly with each other. Whether you take any example, let's we are today we are celebrating National Sports Day. In remembrance of Shri Ji's hockey player. If we will talk about the hockey also, there are a few minutes only where we have to take a lot many decisions. So you should be well aware of your environment, then only you can play well. Second, whatever game you play, you need to be a good strategy maker, and this is the 21st century skills. We talk about creativity, and the second constructive. So critical and creativity, these two things can be very well enhanced through games and sports. Energy flow, you can see whenever you are playing any game, there are a lot of energy in children as well, you might have seen. But as we go keeps on growing, this energy level keeps on moving down, because we are not so connected to games and sports. So if you are playing game, definitely you will feel a lot of energized also. Now one more thing we can learn from lots more games and sports, that is cooperation. Whatever team, there are different kinds of sports, single kind of sports, dual sports, and team sports also are there. But when we are playing any sports where two or more than two persons are involved, definitely we need a lot of cooperation. Cooperation means when you are ready to help other, there is no specified sort of rules, but you have to cooperate other, because you have to reach to the common goal, common target. So games are very helpful to learn this skill of cooperation. Second, we learn how to follow the rules. Every sport has certain rules and regulation, and unless you are abiding by these rules and regulation, you cannot be a good player. So you need to know what are the rules and how to follow these rules in order to be a successful player. And that's what happens in our life also. There are certain rules laid by the state, and we must follow these rules and regulations. So it actually gives us an insight that what are the consequences if we are not going to follow any rules and regulations. Second, another important point which comes into my mind, that is the confidence, that if you are playing any game, definitely you will be able to develop so many skills, but it gives you a lot
of confidence as well. Yes, I can do it. Stress reliever, it is a wonderful, games and sports are wonderful means of relieving your stress. If I want to relate this sports with the various age specific things like adolescence. Adolescents are actually they like playing games and sports. You can see, you can recall your days if you are adult or a senior citizen, that whenever there used to be any games player, it must have been a wonderful period. जो आनंद आपको गेम्स के पीरियड में मिलता था वो शायद किसी और पीरियड में मिल पाए, उसका बहुत मुश्किल संभावना है उसकी. सो एट द एज ऑफ दिस एडोलसेंस, दिस stage, adolescents are filled with lot of energy, they are bubbling with energy. So games and sports are the wonderful way to channelize this energy. और ये जो मैंने बातें की ऊपर के कॉपरेशन डेवलप होता है, अवेयरनेस होता है, स्ट्रेटजी प्लानिंग सीखते हैं कि कैसे किस मोमेंट पे क्या बदलाव किया जाना चाहिए, अडेप्टेशन कैसे किया जाना चाहिए. ये एडोलसेंस एज में जो है वो सीखने के लिए जो एक बहुत अच्छा अवसर जो है हमारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमें प्रदान करते हैं. अगर हम बात करें एडल्ट स्टेज के अंदर, तो एडल्ट स्टेज की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर जैसे ही हम थोड़ा सा ग्रो अप करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है अपनी बॉडी का, हमें फिजिकल एक्सरसाइज की कही जाती हैं, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस सजेस्ट की जाती हैं, हमें वॉकिंग सजेस्ट किया जाता है. और अगर हम गेम्स खेल लेते हैं, अगर हम 1 घंटा बास्केटबॉल खेलते हैं तो आप ये मानिए आपकी ज़्यादातर ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं. और सीनियर सिटीजन स्टेज पर पहुँचते पहुँचते तो याददाश्त कमज़ोर होना और बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं. अगर आप गेम्स खेलते हो तो आप देखिए आप थक जाएंगे और आराम से आपको नींद भी आएगी, और जो आपका एक कोऑर्डिनेशन है वो भी बना रहेगा. डेफिनेटली वहाँ पर हम उन गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे जहाँ पर हमें कम एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं. लेकिन जीवन के इन तीनों पड़ाव में जो हमारे मुख्य पड़ाव हैं उसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स का बहुत विशेष योगदान रहा है. अगर मैं इसको साइकोलॉजी से जोड़ूँ तो एरिक्सन ने ये जो 12 से 18 साल की एज जिसे एडोलसेंस कहा था, जिसके अंदर मुख्य जो एक बातें उन्होंने कही थी कि आइडेंटिटी फ्रेमिंग होता है, रोल कन्फ्यूजन होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है. उस स्टेज में जब बच्चा एक एडोलसेंस ये खोजता है कि मुझे आगे अपने भविष्य में क्या करना है, क्या व्हाट एम आई, हु एम आई, मुझे क्या किया जाना है, तो उसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. क्योंकि एक वो स्थिति है जहाँ पर उन्हें आगे बढ़ना है, जहाँ पर उन्हें निर्णय लेना है कि कहाँ उनका जीवन आगे की ओर बढ़ेगा. और अगर हम उसको मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी से देखें तो उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस दी गई हैं. फिजियोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी नीड, लव अफेक्शन की नीड हम बात करते हैं, उसके अंदर एस्टीम नीड की बात करते हैं, और एंड में हम बात करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन कि हमने समाज से सब कुछ लिया, अब हमारा ये अवसर है, ये अब हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है कि हम उस समाज को वो वापस करें जो हमने उस समाज से प्राप्त किया. और जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, आप देखिए, हम जितने भी बड़े बड़े नाम की बात करें कि वो अपने परिवारों से दूर रहकर भी अपने देश के लिए खेलते हैं. वो समय जो वो अपने परिवार के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ, मित्रों के साथ बिता सकते थे, वो समय वह प्रैक्टिस में बिताते हैं, देश के लिए बहुत कुछ करते हैं. और वो स्टेज है, 5वीं स्टेज है जिसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं. बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन ये जितने भी खिलाड़ी हैं जो देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, ये उन सभी स्टेज पर पहुंच जाते हैं. यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूँगा माननीय श्री सुभाष चंद्र बोस जी का, जिन्होंने सब कुछ अपने परिवार का, अपनी नौकरी का ध्यान ना रखते हुए भी इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के जो 5वां पड़ाव है वहाँ पर पहुँचते हुए देश के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की. मैं आज इस
नेशनल स्पोर्ट्स डे पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। गत वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक अभियान शुरू किया था, जहाँ पर आप सबको, हम सबको जोड़ने का प्रयास था खेलों के साथ। हमें उम्मीद है कि आप सभी खेलों के साथ जुड़ेंगे, एक स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे और हमारा देश जरूर विश्व गुरु बनेगा। शुभकामनाएं, धन्यवाद।